Today we will see question bank of chapter circle, right? इस तरह से हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सिर्फ क्रिएटिव क्वेश्चंस देखे थे. Just like that, we will see creative question of circle chapter, right? So the last question number 8 of your question bank from circle chapter. Question number 8, first sum. So what is the given condition? See in this diagram, angle AOB. See here, angle AOB is equal to how much? 90 degree, right? And angle ABC. Angle ABC is equal to how much? 30 degree. This central angle is 90 degree. This angle ABC equal to 30 degree. Then we have to find angle CAB. कौन सा एंगल फाइंड करना है हमको? CAB एंगल फाइंड करना है. क्वेश्चन मार्क, ठीक है? एंगल CAB फाइंड करना है. So what we will do? See, as we all know, एंगल AOB जो है वो सेंट्रल एंगल है. तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ आर्क, angle AOB is equal to measure arc AB. In other words, I can apply central angle theorem also. Angle AOB जो central angle जो बना है वो उस arc से equal होता है. Therefore, angle AOB is equal to measure arc AB. Right? Which theorem? Central angle theorem. Which theorem? Central angle theorem. Right? Therefore, measure arc AB कितना हो जाएगा? Measure arc AB is also become 90 degree. Measure arc AB कितना हो जाएगा? 90 degree हो जाएगा, right? Okay. Then next कौन सा एंगल हमको गिवन है? This angle. Angle ABC is given to us, right? तो एंगल ABC का वर्टेक्स जो है वो सर्कल के ऊपर है. So I will apply which theorem? Inscribed angle theorem. Which theorem? Inscribed angle theorem. तो एंगल ABC, ठीक है? एंगल ABC. इस एंगल ABC का हमको मुंह खोलना है. देखो इस तरह से वो एंगल को खोलना होता है, राइट? तो एंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर्क AC. एंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क AC बाय विच थ्योरम? इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम. विच थ्योरम? इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, राइट? So angle ABC is given 30 degree is equal to half of measure arc AC. Therefore measure arc AC कितना हो जाएगा? 30 multiplied by 2, and that will be equal to how much? 60 degree. This arc AC will become how much? 60 degree, right? Okay. तो ये arc AB 90 आ गया, arc AC कितना आ गया? 60 आ गया, right? अच्छा, इस पूरे सर्कल के अंदर हमारे पास पे 3 आर्क है. कौन कौन से? arc AB, arc AC and arc CD, right? The sum of all these arc is equal to how much? 360 degree, right? So measure arc AB plus measure arc AC plus measure arc BC is equal to how much? Total 360 degree, right? Again you can write definition of arc या फिर sum of the measure of the arc of the circle. Sum of the measure of the arc of the circle. तो by substituting arc AB का वैल्यू कितना है? 90 डिग्री. arc AC का वैल्यू 60 डिग्री है and arc BC निकालना है हमको. And that will be equal to 360. 90 plus 60 150. 150 वहां जा करके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. तो मेजर आर्क BC equal to 360 minus 150. That will be equal to how much? 210 degree. कितना हो जाएगा? 210 degree. तो आर्क BC का मेजर कितना आ गया? 210 डिग्री आ गया, राइट? ओके. जस्ट लाइक एंगल ABC जो हम लोगों ने इंस्टेंट एंगल थ्योरम अप्लाई किया था, इस एंगल को हम लोगों ने ओपन किया था, उस तरह से हमको अभी एंगल CAB फाइंड करना है. ठीक है आपको? एंगल CAB का अगेन वो एंगल आप लोग खोलिए. वो एंगल अगर हम लोग खोलेंगे तो कौन सा आर्क आ रहा है? आर्क BC आ रहा है, ठीक है? तो एंगल CAB विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क BC. एंगल CAB is equal to half of measure arc BC. Again which theorem? Inscribed angle theorem, right? And RBC कितना निकाल लिया हम लोगों ने? RBC is 210 degree. If we divide by 2, we will get 105. Angle CAB is equal to how much? 105 degree. Clear? Okay student, now see the second question. देखिए सेकेंड क्वेश्चन के अंदर हमको ये डायग्राम बना करके दिया है.
सबसे पहले मैं इस डायग्राम के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। टेकिंग ए बी एज अ डायमीटर, एक ए बी डायमीटर लेकर के एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया है, राइट, जिसका सेंटर क्या है ओ, सेंटर क्या है ओ, राइट। देन एक और एक सर्कल बनाया हुआ है, इस सेमी सर्कल के अंदर एक सर्कल बनाया हुआ है सेंटर पी लेकर, राइट। ओके, ए बी का वैल्यू 10 दिया है, ए सी का वैल्यू 6 दिया है, ए बी का वैल्यू 10 दिया है, ए सी का वैल्यू 6 दिया है, ठीक है। PC एंड PQ दे बोथ आर रेडियाई ऑफ द स्मॉलर सर्कल, ठीक है। इसको x डिनोट किया है उन लोगों ने सम के अंदर, दैट मीन्स हमको x फाइंड करना है, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल। क्या फाइंड करना है हमको? रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। ठीक है, डायग्राम देख करके आपको लगेगा कि सम काफी डिफिकल्ट है, बट सम डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल है। सिर्फ खाली डायग्राम को प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करना है। सी ओ सेंटर है इस सेमी सर्कल का, राइट, दैट मीन्स AO इज इक्वल टू OB, OA और OB इक्वल होगा बाय रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। AB इज गिवन 10, AB जो है वो 10 दिया हुआ है, तो OA और OB दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा? Therefore OA और OB दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ द डायमीटर। पूरा AB 10 दिया हुआ है, तो OA और OB रेडियस है, राइट, तो OA कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और पूरा OB भी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, राइट। ओके, देन OB 5 हो गया, देन दे हैव गिवन AC का वैल्यू 6, AC का वैल्यू इज गिवन 6, राइट। अच्छा, AC अगर 6 है तो CB कितना हो जाएगा? पूरा AB 10 है, AC 6 है, तो CB कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। CB कितना हो जाएगा? 4। Therefore CB is equal to AB minus AC। CB निकालना है, एंटायर AB minus AC, तो AB minus AC 10 minus 6 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो CB का वैल्यू क्या आ गया? 4 आ गया, राइट। अच्छा, एज वी नो एंटायर OB का वैल्यू कितना है? 5 है, OB का वैल्यू 5 है, उसके लिए CB 4 हो गया, तो OC कितना होगा? 1 होगा। Therefore OC equal to OB minus CB, right? So 5 minus 4 and that will be equal to how much? 1. तो OC कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, right? अच्छा, similarly OQ is also radius of the semicircle, right? जैसे OA 5 है, OB 5, तो OQ भी क्या होगा? 5 होगा। Therefore AO equal to OB equal to OQ। ये तीनों रेडियस है इस सेमी सर्कल के, देखो OA, OB एंड OQ, रीजन रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, या आई कैन से सेमी सर्कल ऑल्सो। Therefore OQ कितना हो जाएगा फिर? 5। OQ भी पूरा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। As we all know PQ एंड PC दे बोथ आर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, तो अगर उन्होंने PC को x मार्क किया है तो PQ भी क्या होगा? PQ भी x होगा। लेट PC इक्वल टू PQ इक्वल टू हाउ मच? x, राइट। अच्छा, पूरा OQ 5 है, पूरा OQ 5 है, उसमें से PQ x चला गया, तो OP कितना होगा? OP विल बी OQ माइनस PQ, राइट। हमको OP निकालना है, OP कैसा निकलेगा? OQ माइनस PQ, राइट। तो OQ कितना है? OQ is 5 and PQ is what? X. So what is OP become? OP will become 5 minus X. OP क्या हो जाएगा? 5 minus X हो जाएगा, right? OP will become 5 minus X. Now the last thing. Now the last thing. PC is the radius and I can call it as OB is the tangent to this circle. OB tangent है, तो radius tangent क्या होते हैं? Perpendicular होते हैं, right? This is by tangent here. तो angle OCP is equal to 90 degree. Why? From tangent theorem. At last, इस ट्राइंगल में क्या अप्लाई करना है हमको? इन ट्राइंगल OCP हमको क्या अप्लाई करना है? बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या अप्लाई करना है? बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? OP स्क्वायर इक्वल टू CP स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। OP स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर। व्हाट इज OP? 5 minus x the whole square. What is CP? X square. What is OC? 1 square, right? This I can write A minus B the whole square, the formula. So A square minus 2 into A into B plus B square. And right hand side पे x square plus 1. This x square and this x square get cancelled. 5 square is 25.
माइनस 2 5 इज 10x इज इक्वल टू 1। 25 1 को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आएंगे और 10x को राइट हैंड साइड पे लेकर आएंगे। 10x वहां जाएगा तो प्लस 10x हो जाएगा। 25 माइनस 1 24 इज इक्वल टू 10x। Therefore x equal to 24 upon 10, you will get 2.4. Therefore radius of smaller circle is 2.4 units or centimeter or meter. X equal to 2.4 units. Okay student, now third sum. See the diagram of third sum. A circle is inscribed inside this quadrilateral A, B, C, D. एक सर्कल इंस्क्राइब किया गया है इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर, राइट। O इज द सेंटर, राइट। दिस एंगल AD is perpendicular on DC, it is given. AD is perpendicular on DC, so this angle will become how much? 90 degree. BC is given 38, CD is given 25 and QB is given 27, right? We have to find radius of this circle. हमको इस सर्कल का रेडियस निकालना है। See, OP and OS, they are the radius of this circle. तो I can call it as R. तो OP और OS रेडियस है, तो OP R तो OS भी क्या होगा? R होगा, राइट। ओके, अगेन OP इज परपेंडिकुलर टू AD। व्हाई? क्योंकि OP रेडियस है और AD क्या है? टेंजेंट है। OP रेडियस है और OD क्या है? टेंजेंट। तो टेंजेंट थ्योरम से क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। सिमिलरली OS रेडियस है और CD क्या है? टेंजेंट है, तो ये भी क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, राइट। सो एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? कि AD जो है वो DC के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर। AD इज परपेंडिकुलर टू DC, राइट। एंड सिमिलर OP एंगल OPD इज इक्वल टू 90 डिग्री। OPD 90 डिग्री एंड सिमिलरली OSD इज आल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। व्हाई? टेंजेंट थ्योरम। व्हिच थ्योरम? टेंजेंट थ्योरम। देयरफॉर एंगल, ये एंगल एक ही एंगल बचा है इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर, OPDS के अंदर एक ही एंगल बचा है, तो एंगल SOP भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। दैट इज रिमेनिंग एंगल। क्या हो जाएगा? रिमेनिंग एंगल हो जाएगा, राइट। रिमेनिंग एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, रिमेनिंग एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, राइट। देयरफॉर इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर सारे एंगल 90 हो गए, तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा? हमारा रेक्टेंगल बन जाएगा। तो क्वाड्रिलेटरल OPDS इज अ रेक्टेंगल। इज व्हाट? रेक्टेंगल। क्योंकि इसके हर एक एंगल क्या है? 90 है। बट OP और OS इसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल है। OP और OS इक्वल है, इसके एडजेसेंट साइड इक्वल है। OP इज इक्वल टू OS इज इक्वल टू रेडियस, राइट। देयरफॉर अगर एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाते हैं रेक्टेंगल के, तो वो क्या बन जाता है? हमारा स्क्वायर बन जाता है। क्या बन जाता है? वो हमारा स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके सारे एंगल 90 है, तो इसकी वजह से वो रेक्टेंगल बना है। बट क्योंकि एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, तो इसलिए वो क्या बन गया हुआ है? स्क्वायर बन गया हुआ है। क्या बन गया है? स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, अगर ये स्क्वायर बन गया है तो ऑल साइड्स विल बी इक्वल। देयरफॉर DP, DS, OP, OS चारों की साइड इक्वल हो जाएंगे और चारों भी क्या कहलाए जाएंगे? रेडियस कहलाए जाएंगे। क्या कहलाए जाएंगे? रेडियस। तो DS को आई कैन कॉल इट एज रेडियस एंड DP को भी आई कैन कॉल इट एज रेडियस। ठीक है? ओके। नाउ एज वी ऑल नो टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। सपोज अगर मैंने ये पॉइंट C लिया है, तो इस C पॉइंट से दो टेंजेंट बन रहे हैं। इस C पॉइंट से दो टेंजेंट बन रहे हैं। दैट मीन्स CS will be congruent to CQ. CS will be congruent to CQ, right? CS equal to CQ. Why? Tangent segment theorem. Which theorem? Tangent segment theorem. जो हमने सर्कल का सेकंड चैप्टर पढ़ा था, right? Okay. Now BC is given 38, QB is 27. तो CQ कितना होगा? 11 हो जाएगा, है ना? CB 38 है, QB 27 है, तो CQ कितना होगा? 11 हो जाएगा। CQ इक्वल टू CB माइनस QB, दैट मीन्स 38 माइनस 27 दैट इक्वल टू हाउ मच? 11। तो CQ क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अगर CQ 11 होगा तो CS भी 11 हो जाएगा। Therefore CS is also equal to 11, right? Similarly पूरा DC 25 दिया है, पूरा DC क्या दिया? 25। उसमें से CS 11 हो गया, तो हमको DS मिल जाएगा, right? Similarly
Similarly, ds equal to entire CD, DC minus CS, right? ds निकालना है, that will be equal to entire DC minus CS. तो 25 minus 11, that will be equal to how much? 40. तो ds मिल गया, that means हमको क्या मिल गया है? रेडियस मिल गया है, is equal to 40 units. ठीक है? तो इस तरह से हमको डायग्राम प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करना चाहिए. डायग्राम अगर हमको प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करेंगे तो हमारा सम सिंपल हो जाता है. Okay student, now we'll see the fourth sum. देखिए फोर्थ सम के अंदर से दो सर्कल दिया है और कहा है कि AB एंड CD आर दी कॉमन टेंजेंट. AB एंड CD आर दी कॉमन टेंजेंट और हमको प्रूफ करना है कि AB और CD क्या है? कॉन्ग्रुएंट. सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट CD. तो देखो हमने क्या क्या ज्वाइन किया है कंस्ट्रक्शन में. ज्वाइन PA, PC, BQ, QD, PB, PD एंड लास्ट में PQ. तो ये सारे सेगमेंट हमको क्या करना है? ज्वाइन करना है. ओके, P एंड Q पॉइंट मार्क करके नहीं दिया है क्वेश्चन में, डायग्राम में मार्क करके नहीं दिया, हमने खुद से लिया है. पॉइंट P एंड पॉइंट Q दे आर द सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट? ओके, तो किस तरह से करना है? सेगमेंट AB और सेगमेंट CD को कॉमन किस तरह से करेंगे? सिंपल है, लेट अस सी. BQ इज द रेडियस एंड इस AB इज द टेंजेंट और आई कैन से PB इज आल्सो द टेंजेंट, राइट? तो ये क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा. क्या हो जाएगा? ये 90. सिमिलरली PD को भी आई कैन से टेंजेंट, तो ये क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा, राइट? ओके, तो P पॉइंट से देखिए, P पॉइंट से दो टेंजेंट जा रहा है हमारे पास, दो टेंजेंट जा रहे हैं. तो हम लोगों ने क्या पढ़े थे? टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट. टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट विल बी इक्वल. टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट विल बी इक्वल. अगर हम इसको नहीं भी ज्वाइन करेंगे तो भी चलेगा. ये थोड़ा सा आपको डायग्राम में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता रहेगा, तो इसको मैं अभी मिटा देता हूँ. ठीक है? सो PB एंड PD दे बोथ आर टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट. तो PB इज इक्वल टू PD. व्हाई? टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम. टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, इक्वेशन नंबर 1. राइट? नाउ सी, PA and PB they both are congruent. Why? Radii of same circle. Again AB tangent है and PA is the radius. तो tangent theorem से क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा. Similarly PC radius and CD is the tangent to AB क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा. तो हम यहाँ पर पहले लिख लेंगे एंगल PAB is equal to एंगल PCD is equal to 90 डिग्री. Why? Tangent theorem. Tangent theorem से वो क्या होगा? 90 डिग्री होगा. इक्वेशन नंबर 2. Right? Again? Okay. Now what we will do? We will select two triangle PAB and triangle PCD. Triangle PAB and triangle PCD. Right? PAB और PCD दिख रहे हैं ये दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ऊपर है और एक ट्रायंगल नीचे की तरफ. इस दो ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे. तो हाउ वी विल प्रूव दिस टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट? ये दो ट्रायंगल को कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे हम लोग? PA is congruent to PC. Segment PA is congruent to segment PC. Why? Radii of same circle. Radii of same circle. Right? Angle PAB is congruent to angle PCD. Why? Each is 90 degree. Each is 90 degree. And then we have this PB, hypotenuse side. ये राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल का हाइपोटेनस साइड और ये हाइपोटेनस साइड से इक्वल है. सो hypotenuse side PB is congruent to hypotenuse side PD. कहाँ प्रूफ किया हम लोगों ने? ये प्रूव्ड इन 1. प्रूव्ड इन इक्वेशन नंबर 1 है ना. 1 में हम लोगों ने प्रूफ किया था दो कॉन्ग्रुएंट. व्हाई दे बोथ आर कॉन्ग्रुएंट? बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम. एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोगों ने दो टेंजेंट बनाया हुआ है इस सर्कल के लिए. तो टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम से दोनों का लेंथ क्या होगा? इक्वल होगा. दैट मींस ये दोनों भी ट्रायंगल PAB कॉन्ग्रुएंट हो गए. ट्रायंगल PCD बाय विच टेस्ट? बाय हाइपोटेनस साइड टेस्ट. बाय विच टेस्ट? हाइपोटेनस साइड टेस्ट. एक बार दो ट्रायंगल जब हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होते हैं वो भी क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. तो व्हाट विल बी द करस्पॉन्डिंग साइड? सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट CD. सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट CD. व्हाई? Corresponding sides of congruent triangle.
दिस इज अवर प्रूफ। सेगमेंट एबी और सेगमेंट सीडी को हमने प्रूफ करना था, तो इस तरह से, राइट। तो इसलिए हमको क्या ज्वाइन करना है, पीए, पीसी, पीवी, पीडी, बीक्यू एंड पीडी हमको क्या करना है, ज्वाइन करना है। क्लियर? Okay student, now we will see the last question, that is fifth one. Three circles touch each other externally. ये सब लास्ट टाइम में भी आया था बोर्ड एग्जाम में, चैलेंजिंग क्वेश्चन में, बट उसमें वैल्यूज डिफरेंट थे, यहाँ वैल्यूज डिफरेंट दिया है उन्होंने। AB का वैल्यू इज गिवन 36, BC का वैल्यू इज गिवन 32 एंड AC का वैल्यू इज गिवन 30, राइट? ओके, नाउ इफ यू लुक एट AB कंप्राइज ऑफ R1 एंड R2। R1 दिख रहा है, मैंने सेम मार्क किया हुआ है, ये रेडियस ऑफ दिस सर्कल, फर्स्ट सर्कल। जहां सेंटर B है उसका रेडियस R2, जहां सेंटर C है उसका रेडियस R3, राइट? सो AB का वैल्यू इज गिवन 36, सो AB को आई कैन राइट एज एंटायर R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 का वैल्यू इज 36, राइट? इसको आई कैन कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 1। BC का वैल्यू इज गिवन 32, तो BC को आई कैन राइट R2 प्लस R3। R2 प्लस R3 इज गिवन 32, इसको आई कैन राइट इक्वेशन नंबर 2। एंड AC का वैल्यू इज गिवन 30, तो AC को आई कैन राइट R1 प्लस R3 इक्वल टू 30, इसको आई कैन राइट इक्वेशन नंबर 3, राइट? वी गॉट थ्री इक्वेशन, R1 प्लस R2 इक्वल टू 36, R2 प्लस R3 इक्वल टू 32 एंड R1 प्लस R3 इक्वल टू 30। तो व्हाट वी विल डू, ये तीन इक्वेशन तो हम लोग को मिल जाएंगे, बट उसके बाद करना क्या है, इन इक्वेशन को ऐड करना, ऐड इक्वेशन 1, 2 एंड 3। So if you add all these three equations, R1 plus R2 plus R2 plus R3 plus R1 plus R3, if you add, you will get 2R1. See, R1 plus R1, 2R1. Similarly, R2 plus R2, 2R1. And similarly, R3 plus R3 will get 2R3. तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमको ये मिलेगा, एंड राइट साइड पे फिर हमको ऐड करना है 36 प्लस 32 प्लस 30, we will get 98. What we will get? 98. So divide throughout by 2. What we will get? R1 plus R2 plus R3 equal to 49. This is our equation number 4. क्या इसके हम बोले इक्वेशन नंबर 4 आ गया, राइट? Now we have 4 equation. First is 3 and next is 4. अब ये फोर्थ इक्वेशन के अंदर हम लोग 1 बाय 1 इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। एक बार कह रहा हूं, इस इक्वेशन 4 में हम लोग इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 का वैल्यू पुट करेंगे 1 बाय 1। तो फर्स्ट इस इक्वेशन 4 में मैं इक्वेशन नंबर 1 का वैल्यू पुट कर रहा हूं। इस इक्वेशन नंबर 4 में मैं इक्वेशन नंबर 1 का वैल्यू पुट कर रहा हूं। यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 वैल्यू क्या है? 36। तो इन प्लेस ऑफ R1 प्लस R2 आई विल गेट 36 प्लस R3 इक्वल टू 49। देयरफॉर R3 इक्वल टू 49 माइनस 36 बिकम 30। तो R3 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 30 मिनट्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 30 मिनट्स, राइट? सिमिलरली इसी इक्वेशन 4 में मैं इक्वेशन नंबर 2 यूज करूंगा। यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, पहले हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 यूज कर लिया, अभी हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 यूज करेंगे। So now equation number 2 में क्या है? R2 plus R3. So now in place of R2 plus R3, what I will put? 32. So R1 as it is, right? R2 plus R3 के बदले हम क्या पुट करेंगे? 32 पुट करेंगे, and that equal to 49. Therefore R1 equal to 49 minus 32, and that will be equal to 17 units. So R1 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 17 units आ जाएगा। Similarly using equation number 3, तो अभी हम लोग क्या इक्वेशन 3 यूज करेंगे। तो इन प्लेस ऑफ R1 प्लस R3 व्हाट आई विल पुट? 30। तो R1 प्लस R3 के बदले में हम क्या पुट करेंगे? 30 पुट करेंगे, प्लस क्या बच जाएगा? R2 इक्वल टू 49। देयरफॉर R2 इक्वल टू 49 माइनस 30, एंड देयरफॉर R2 इक्वल टू हाउ मच? 19 यूनिट्स। So we got all the three radius. R1 is 17 unit, R2 is 19 unit, and R3 is 13 units.